अदिति का स्पेशलिटी और सबसे बड़ा इन्होंने टैलेंट प्रूव किया है अपना इंग्लिश में। इंग्लिश लिटरेचर्स में इन्होंने 100 में 100 लाया। आज तक उड़ान के संस्था में बहुत अभी तक ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं थे जिन्होंने 100 में 100 लाया है इंग्लिश लिटरेचर्स में। अदर सब्जेक्ट में 100 में 100 आया हुआ है, लेकिन इस बार ये उड़ान होम ट्यूशन के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि अदिति झा इंग्लिश लिटरेचर जो काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, इन्होंने इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाया। चलते हैं, अब हम लोग अदिति से बात कराएंगे, आपको अदिति से रूबरू कराएंगे कि इन्होंने किस तरह अपना पढ़ाई की, किस तरह इंग्लिश में अपना स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की, जिससे कि इन्होंने 100 में 100 इंग्लिश में मार्क्स लाए। 100 में 100 मार्क्स लाना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। बहुतों का सपना होता है, ड्रीम होता है, लेकिन उसमें बहुत से कम से लोग होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लाते हैं। तो अदिति आप बताइए कि इंग्लिश में लिटरेचर्स में अपने आप बताइए कि आप कितना मार्क्स लाएंगे। I got 100 out of 100 in English literature. I used to study from थोड़ा सा मार्क्स नीचे कर लो, खाली आवाज़ है। from the self study of and the small words which were given in the answer has to be remembered very nicely, like the patriot was accorded a warm welcome. So these are small words: accorded, Callius, hold. तो अदिति झा, जब आपको कब लगता है उड़ान होम ट्यूशन आप कब ज्वाइन की थी? I joined Udan Home Tuition in class 10. Or had you any kind of a guess in your mind that after giving examination of English literature that you will going to get 100 out of 100? No, because it's a very hard subject, and especially in ICSE, English literature is like famous that it's the hardest subject in ICSE. So yes, I was having the hope that 85 above. What Aditi is saying that she was only hoping 85 and more in English, but when the result came, she was very delighted and happy. She got 100 out of 100 in English. And as Aditi is saying, the English literature is really a very tough subject. It was English literature, no? Yeah. Where you got 100 out of. Yeah. In English literature, you know, there are a lot of spelling mistakes, there are a lot of grammatical mistakes, but how the Aditi arranged himself, how she relaxed her mind in the exam, that she tried to write each and every word very suitable according to the grammaticals, according to the literatures. She gave the answer very suitable. She didn't do any kind of a mistake in her English literature copy, because you know, even if a single mistake if you do in ICSE board, like a single spelling, if you do mistakes, you will get stuck and you will not get 100. So it's not only writing answer tactfully, but also you have to give the care to your spellings using right words. So what you Aditi, tell me to the other students, what precaution you were taking during writing the answer questions of the English literature in the exam hall? First of all, though, there should be no spelling mistakes, and some words are there which you should write in your answer to impress the teacher who is checking your copy. And I would prefer the self study. You should just don't drabble all the answer, but yes, you have to understand it like a story. And especially the Merchant of Venice is really a drama, so you have to take it in that way, like a story. Okay. Had you ever think I have to work a lot in English literature because I have to get 100? Have you thought like this ever before? No. It was like other subject only. Yeah. Like maths. Like you have to give the time like you are giving to other subject like physics, chemistry. Similarly, you have to give the time to other subject also. This was your hopes. Yeah. But when you went to the exam hall, wrote the answers, have you, when you returned to home after giving examination, was in your mind something like I did some mistake in English, something like that? No, like mistake I have not done, but yes, I was feeling that like all my answers are correct or not. I was a bit nervous about it. From your side, there was no mistake in the copy. No. And that reflects in the copy that Aditi had done no mistakes, and so she got out of 100. She got 100 out of 100. What do you say about the Udan Home Tuition attendance sheet? What is the good in that? In the attendance sheet, yes, everything is given in a systematic way. That have you done? Is the child doing his homework? A parent sign, yes, that parents are knowing that yes, my child is studying. And yes, the teachers are also very cooperative. If someday I have not done the homework because of my practicals, projects, so they will understand. तो आदित्य, आप ये बताओ कि अगर आपको उड़ान होम ट्यूशंस को हमने
10 मार्क्स आउट ऑफ 10 अगर पूछें कि आप उड़ान होम ट्यूशन को कितना मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10, तो आप कितना देंगी? 10. She Because it is the best Aditi giving 10 out of 10 to the Udan Home Tuitions. Obviously, she was very hopeful or so much confidence with the Udan Home Tuition that she is giving 10 out of 10. और अदिति, आप बताइए कि आप उड़ान होम ट्यूशन को दूसरे को रेफर करेंगी, करना चाहेंगी? Yes. अच्छा, क्या होता है, ऐसा क्या है इसमें कि आप दूसरों को रेफर करना चाहेंगे? क्या इसमें क्या आपको अच्छा लगा? Means the teachers are very cooperative. They give you the sample paper, time limit is given, so means it will help you to write the exams, to have those ideas in your mind, to write the answer, framing answers. उड़ान होम ट्यूशन के टीचर में आपको कैसे लगे? बहुत टैलेंटेड लगे, क्या लगे? सबसे ज्यादा अच्छा उसमें क्या ट्रेड्स आपको दिखा? हाँ, Randeep sir was, like, his timing was also very nice. पंक्चुअल? Yeah, punctual. He was very सारे डाउट्स punctual. आपको क्लियर करते थे, जो भी डाउट होता था वो क्लियर करते थे। Yeah. कोऑपरेटिव काफी थे। Yeah. आपको Even if I asked 2 to 3 times, 4 times, and also he was like. अच्छा, क्या होता है कभी कभी टीचर्स का एक ये डिमेरिट ही मानता हूँ मैं कि ये टीचर्स होने के नाते उनको कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन होता है बच्चों को पढ़ाना। हो सकता है बच्चा एक बार भी नहीं समझे, 2 बार भी नहीं समझे, तो आपको 2-3 बार भी बताएं तो आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इसके जो सर आते थे उड़ान होम ट्यूशन की तरफ से, तो ये कभी वो इरिटेट नहीं होते थे। ये टीचर का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। और जो टीचर्स हमारे हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखिए, जो अदिति बोल रही है कि बच्चा नहीं समझे 1 बार 2 बार तो उनको आप बार बार बताइए, बशर्ते इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप उस पर गुस्सा कीजिए। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चे 90 क्रॉस ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी बाय बर्थ वो बहुत तेज़ होते हैं। वो मेहनत करके अपना ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इस तरह का मार्क्स लाते हैं। अदिति खुद बोल रही है कि हमने ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने चीज़ों को 1 बार में नहीं समझा। तो जो भी बच्चे को 1 बार में समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं सोचे कि वो 90 क्रॉस नहीं कर सकते, 100 नहीं ला सकते। तो यू नीड टू बी फोकस, यू नीड टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द उड़ान होम ट्यूशंस। तो मैडम, आपने अदिति के बारे में बताइए कि ये आपके सारे बातों को मानती थी? सब डिमांडिंग नहीं है, बच्ची डिमांडिंग नहीं है, जो दिए उससे सेटिस्फाइड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप इसको कैसे हौसला कैसे बढ़ाती थी आप एज ए पेरेंट्स? कि पढ़ना है, अगर अच्छा जिंदगी चाहिए तो पढ़ो। जब हम आगे कभी सब कुछ मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई से। रात भर ये भी जागते थे मेरे साथ। हाँ, रात देखिए, को अदिति इसके की साथ- मम्मी जो है, बच्ची जगी हुई है, मम्मी भी जगी हुई है। अब तो इस तरह का कुछ हालत हो गया कि भाई बच्ची की मेहनत के साथ साथ मम्मी भी मेहनत कर रही हैं। अपने समय में तो की होंगी, अभी भी करना पड़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि पेरेंट्स का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। उनके बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, बच्चे उनके लिए बच्चे ही होते हैं। अब अदिति जग रही है 3-4 बजे तक, उसकी मम्मी भी साथ में जगती थी। मैडम, तो फिर आप क्यों जगती थी? तो पढ़ती थी, तो फिर आपको जगने की क्या जरूरत था? डर तो इसको नहीं लगता होगा? ऐसा नहीं है? नहीं, डरती है। तो मैडम, जब बच्ची का 90% आया, 90%, तो कैसा लगा आपको? कैसा फील? अच्छा, आपको उम्मीद से बच्ची का ज्यादा आया कि कम आया? आप कैसा उम्मीद थे? सर थोड़ा और ज्यादा आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा और ज्यादा आना मेरे चाहिए। उम्मीद से ज्यादा आया, क्योंकि देखिए, अब बोर्ड यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। बच्ची का जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा आया। जो बच्ची है, इनका जो एक्सपेक्टेशन था उससे आपको ज्यादा लगा। हाँ। कि हमको जितना आना चाहिए उससे ज्यादा लगा। पेरेंट्स को थोड़ा और ज्यादा उम्मीद था। चलिए, ये जो उम्मीद आपका है अदिति 12 में पूरा 12 करें, में। है ना? अभी अदिति, से फिर सर से बोल आप के रखे हैं। मेरे तरफ से आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये है कि Thank आप you. 12 में जो आपका मम्मी का एक हेल्प हो, मम्मी से आप 12 में जाके ही अपना ले लेना कि भाई क्या टारगेट है। जो इनका टारगेट है, इस बार अपना टारगेट ना रख के मम्मी का टारगेट पूरा करो। अपना टारगेट तो आपने कर लिया 10th में पूरा। इस बार कोशिश करो कि मम्मी का जो टारगेट है उस पर जहाँ तक हो सके कोशिश करो। और मैडम, एज ए पेरेंट्स आपको उड़ान होम ट्यूशन कैसा लगा? अच्छा सर, एकदम टाइम पे रहते थे। अच्छा, सब कुछ बढ़िया। टीचर इसका टेस्ट भी लेते थे। हाँ, टेस्ट लेते तो ठीक है। डांटते भी थे। डांटते भी थे। हाँ। हाँ। और आप, एक बात बहुत अच्छा है, ये पेरेंट्स जो भी हैं अदिति के, जब भी इनका मंथली कंप्लीट होता था ट्यूशन फी के लिए, इनको हम फ़ोन करते थे। विद इन 1 या 2 दिन के अंदर इन्होंने हमेशा हमको पेमेंट किया, जो भी ट्यूशन फी था इनका। कभी इन्होंने ट्यूशन के फी में डिले नहीं किया। तो अगर आपसे पूछें हम कि उड़ान होम ट्यूशन को 10 में आप कितना नंबर देना 10। चाहें, तो देखिए, अदिति की मम्मी भी जो है 10 में 10 नंबर देना चाहेगी। मैडम, आप लोग दोनों से पूछ रहा हूँ, पहले तो अदिति से पूछते हैं, कुछ ऐसा क्या उड़ान होम ट्यूशन में होना चाहिए जिससे बच्चों को और फायदा हो? कुछ ऐसा कमी, या तो कुछ ऐसा लगता है कि सर अगर उड़ान होम ट्यूशन में अगर ये हो जाए तो और अच्छे बच्चे के लिए हो? इसके साथ तो बोलो। कुछ नहीं, आपको सब चीज ठीक लगता है? या। सब परफेक्शन ठीक है? और आपको मैडम क्या है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, कि सर मुझे ये कमी लगा, अगर ये आप लोग ठीक करेंगे तो नहीं, अच्छा? नहीं। क्योंकि हम
अगर इस तरह का कोई चीज़ लगे कि सर अगर ये ऐसा सब चीज़ ठीक लगा आप लोगों को? हाँ। चलिए, पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं उड़ान होम ट्यूशन से, अच्छी बात है। कोशिश हम लोगों को हमेशा ही होता है कि पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन ही हमारा सेटिस्फैक्शन है। अगर पेरेंट्स और बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमारा जो काम करना है घर पे जाके पढ़ाना होता है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। पेरेंट्स देखिए, पेरेंट्स का सिर्फ कर्तव्य इतना नहीं होता है कि उनको स्कूल भेज दे, बच्ची को ट्यूशन लगा दें, इतना मात्र उनका कर्तव्य नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी ज़्यादा है कि आप जब ट्यूशन बच्चे का लगा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं करता है तो आप उड़ान होम ट्यूशन को इन्फॉर्म कीजिए। टीचर से किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप उड़ान होम ट्यूशन को बताइए। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया, इनको टीचर्स अच्छे लगे उड़ान होम ट्यूशन का। कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे एजेंसी में टीचर बार बार चेंज होते रहता है, इस तरह आप लोगों को कभी कठिनाई हुआ? नहीं। कभी नहीं। जो टीचर्स एक आए शुरू से लास्ट तक वही पढ़ाए। और सर लास्ट में एक बोलना चाहते हैं, आप ही सर मेरे को एग्जाम के 1.5 महीने पहले बोले थे कि प्री बोर्ड के मार्क्स में मत जाइए, बच्ची मेहनती है। हाँ, आपके बच्चे को नंबर आएगा। इंस्टेंसेस बता देता हूँ। प्री बस बोर्ड में ये एक्चुअली बोले क्या थे आप। होता है कि ICSE स्कूल में जब प्री बोर्ड ये सब होता है तो क्योंकि उस समय भी नहीं हो पाता है, दिसंबर नवंबर के आसपास प्री बोर्ड होता है, अक्टूबर के आसपास, तो कम नंबर आता है तो पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरह इसकी मम्मी भी एक समय ऐसा था प्री बोर्ड में काफ़ी परेशान हो गई थी। प्री बोर्ड में कितना आया था? 60% आया था। देखिए अदिति, प्री बोर्ड में 60% लाई थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि जो बच्चा 60% प्री बोर्ड में लाया वो 10th के फाइनल बोर्ड में 90% लाएगा। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा धैर्य रखना चाहिए। हमने इनकी मम्मी को ये भी बोला था कि मैडम आप प्री बोर्ड के मार्क्स में मत जाइए, अभी 2 से 3 महीना होता है। बच्चे काफ़ी अपने आप को एफर्ट लगाते हैं, दिसंबर के बाद जनवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो लोग इस फील्ड में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं मैडम, लगभग 10 साल से। तो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं कि उम्मीद कम छोड़ देते हैं, ऐसे हो जाते हैं कि सर ऐसा होगा, अब कैसे होगा। तो चूंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस है, ऐसा देखा हुआ चीज़ है कि चूंकि अगर ये बच्चे आपकी मेहनती नहीं होते तो हम भी, मेरे मुंह से ये नहीं निकलता, हम यही बोलते कि मैडम ठीक है, आप जो हो रहा है आप उसी से सेटिस्फाइड होइए। लेकिन कहीं ना कहीं अदिति काफ़ी मेहनती थी। इसका जो सैम्पल पेपर मंगवाने का था, हम अभी भी कर रहे हैं कि अगर आप 10th हैं, 12 हैं, किसी भी बोर्ड में हैं, आप उड़ान होम ट्यूशन का स्टडी मटेरियल को सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। सैम्पल पेपर जो उड़ान होम ट्यूशन आपको भेजता है हाफ ईयरली के लिए, फाइनल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिए जैसे अदिति ने सॉल्व किया। पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा, रंग लाएगा। पीछे वाला मार्क्स से मत ध्यान दीजिए कि 9th में कितना था, प्री बोर्ड में कितना था। तो हम लोग एक फीडबैक एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट किए हैं, एक लेडी मेंबर्स को, जिनका काम ये होता है कि हर एक महीना वो जो हमारे एक फीडबैक एग्जीक्यूटिव हैं वो फ़ोन करके बच्चे से बात करती हैं और पेरेंट्स से बात करके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है टीचर से वो पूछती हैं। जो पेरेंट्स और बच्चा प्रॉब्लम बताता है उस पर हम लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो होम ट्यूशन पढ़ाने आते हैं उड़ान होम ट्यूशन से, वो तो टेस्ट लेते ही हैं। इसके अलावा हम लोग पिछले साल से एक अलग आदमी आता है, 2 महीने 3 महीने के इंटरवल में, साल भर में 2 से 3 बार एक अलग से टीचर्स आते हैं जो बच्चे का एग्ज़ाम लेके जाते हैं। वो टीचर्स एक तरह से बच्ची के लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, अननोन होते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा प्रैक्टिस होता है एक अननोन आदमी के सामने टेस्ट देने के। तो अभी जितने भी पेरेंट्स होंगे उनको हम लोग ये चीज़ हैबिचुएट कराएंगे बच्चे की कि अननोन आदमी के सामने भी आपको टेस्ट देना है। तो ये 2 चीज़ें हम लोग इस बार से लागू हुआ है, और जो चीज़ें अच्छी है उसको हम लोग हमेशा लागू करते हैं, जो चीज़ खराब है उसको हटाते हैं। जो भी सजेशन पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा दिया जाता है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं।